Good afternoon, everyone. I, Krishna Arora, student of BGMC, welcome you all to today's talk. Innovation is about successfully implementing new ideas and creative values. Embracing the same in education promotes critical thinking, a sense of adventure, and an openness to adopt that will serve students in the classroom. Considering this, SGMC, in collaboration with the Institutions Innovation Council, an initiative of Ministry of Human Resource Development, Government of India, has organized a mentoring event of Demo Day and poster presentation for ideas and linkage with innovation ambassador. Now, I'd like to invite Dean of SGMC, Dr. Ruchika Gupta, to say something. Innovation, whatever is front of you, at one point of time that was idea, which turned into an innovation, and now you are using. Right from what the clothes you are wearing, the gadgets you are using, it was an idea at one point of time. And this particular event is there to nurture this talent, whereby you come up with new ideas, you show your ideas. We are here to see whether your idea is feasible or not. If the idea is feasible, we can actually go ahead for the funding, or we can go ahead for the innovation, incubation for the idea. So with not much taking much time, I'll ask the event to start. I'd also like to invite IFC President and Dean of SPM, Dr. S.K. Verma, to say some few words. Good afternoon, everybody. Thank you, madam, for giving me a chance to say a few words related to incubation and startup related activities in the campus. It's good to see the gradually but very fastly the entire campus is turning into and getting transformed into innovation environment. In fact, every school is busy organizing some events or other related to incubation, startup and entrepreneurship development. I think that this is one of the most buzzing words in today's academic world, as because of the initiative at the level of Prime Minister of India. Now the entire country is turning into incubation environment, and every institution, whether IITs or IIMs, all are just competing with each other, trying to just implement this kind of activities at the campus level. As a result, within a short period of 4 to 5 years, we have seen so many startups coming up into our economy and contributing very positively in terms of employment, in terms of growth of GDP and all these things. I think that this campus is also going to be a role model, and we let me tell you that we are the people who transform the California campus. In fact, whether this campus or that campus, we have been the president and he has been the convener of Innovation Center there, and within a short period starting from 1915, we have transformed that campus in a period of 6 years into a world-class incubation center. In fact, the entire campus has been transformed into incubation center. Now, the same culture we want to really infuse here, implement here, and also in this process, it's not an individual's effort, it requires effort at the level of each and every individual. And more specifically, the genuine effort should come from the student. But the only thing is that we should mentor them, we should influence them, motivate them, try to show them the way so that they could be lined up and this is going to just to be an ideal place where the students having innovative ideas will be selected through various process of selection internally, and they will be provided dedicated space to work at. Apart from that, seed fund for their taking their innovative idea to a practical level in terms of development of prototype and taking it to the market level. So many things are lined up, but gradually, but very with the determination, we are implementing it with the cooperation of all the schools and all the deans and directors of this university, under the blessings of our honorable Vice Chancellor and Vice Chancellor. Thanks a lot, dear students. Would you believe if I said I could put the knowledge of thousands of books across the world into your hands? Maybe most of you would think that it's not possible. But yes, it is possible. Bookly has made it possible. A very good afternoon to all present here. I am Omhari Kaushik, and these are my teammates Priyanshu and Sahil from Team Technogeeks. Bookly is a digital library that provides online access to a wide range of ebooks and magazines divided early for free. But here, a question may arise.
why would we need a digital library? Digital library provides highly sustainable, convenient and cost-effective way for users to access wide range of digital resources at any time from anywhere. Our mission is to support education and research, preserve cultural heritage, and as we look up to our vision, we may also meet new authors to stand out of the crowd by promoting their books. Thank you. ओम हरि कौशिक। इस टाइप की मार्केट में और भी एग्जिस्टिंग है, आपने कंपेयर किया है? सर मैंने सर्च किया पर बहुत ही फ्यू ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी हैं जो कि फ्री में ई बुक्स प्रोवाइड करती हैं और मोस्ट ऑफ देम दे प्रोवाइड ई बुक्स बट दे आर स्टिल दे आस्क फॉर मनी बट नो वन इज देयर हु प्रोवाइड्स फॉर फ्री। तो इसमें क्या आप फ्री अगर सर्विसेज दे रहे हो तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? सर रेवेन्यू जनरेशन इन द सेंस हम कर सकते हैं, हम जो न्यू ऑथर्स हैं जिनको अपनी पब्लिसिटी बढ़ानी है हम उनको प्रमोशन ले सकते हैं उनसे पेड प्रमोशन उनकी बुक्स के लिए, या फिर अगर हम बहुत ही एक्स्ट्रा सोचे तो हम एक सब्सक्रिप्शन प्लान दे सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को जिससे उनके बच्चे उनकी लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सके अपनी स्टूडेंट आईडी को यूज करके। मार्केट में ऑलरेडी प्रोवाइड है ऐसे बहुत सारे है ना? यस सर। तो आपका न्यू और क्या न्यू हो सकता है लोगों के लिए इनोवेटिव आइडियाज में? सर we will like categorize them and have a wide range of books and rare books and also the books which are like very old books. भी है, जैसे कोई स्टूडेंट है या फैकल्टी है उसको कोई टॉपिक पे समझना है तो अपना लॉगिन खोलेगा और वो टाइटल डालेगा या प्रॉब्लम डालेगा, प्रॉब्लम तुरंत वो लिंक के द्वारा लेक्चर कम मटेरियल जो भी उसका मटेरियल है वो आ जाए। ये अभी किसी ने नहीं किया है, हम लोग भी बोल रहे हैं ये अभी किसी ने नहीं किया है कि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कंटेंट डाला और वो सर्च करे जितने भी डिफरेंट बुक्स आपने लोड कर वो अपने आप खींच लेगा। वो सर्च इंजन आपका इतना पावरफुल है कि वो हाँ नहीं करिए नहीं आप भी छोड़िएगा नहीं लेके और नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसने सजेस्ट किया है कि जो इंस्टीट्यूट है अपने बजट का 1% इस टाइप के एक्टिविटीज में वो दे, तो वो न्यू नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी भी आप डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। Very good afternoon, Honorable Innovation Ambassador Dr. Bipin Kumar Srivastava, Directors of Teachers and my friends. Welcome to my presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. I am Priyank Sharma and my teammate name is Vansu. We are pursuing a first year of engineering from Northern International University. As you can see on the screen, our idea is ambulance tracker. Introduction: a mobile application वेयर इमरजेंसी व्हीकल और टाइम्स, ये आपको बताएगा कि आपकी जो इमरजेंसी व्हीकल है वो कहाँ है और आप अपनी जो रजिस्टर एम्बुलेंस है आप उसे कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकते हो और ये बताएगा कि आपकी एम्बुलेंस अवेलेबल है कि नहीं, और ये ऑल्सो प्रोवाइड कराएगा कंज्यूमर्स को कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कि आपके आसपास कितनी एम्बुलेंस हैं कि नहीं। ये ऐसे आप कॉल करके अपनी एम्बुलेंस बुक करेंगे एंड यू कैन आल्सो ट्रैक योर एम्बुलेंस वेयर कहां पहुंची कि नहीं। करंट सिचुएशन क्या है एम्बुलेंस सर्विसेज की इस टाइम 16 नवंबर 2010 में नेपाल ने डिजिट नंबर दिया था 108। इन हॉस्पिटल आउट ऑफ टोटल पेशेंट अराइविंग इमरजेंसी रूम ओनली 10% अराइव बाय एम्बुलेंस एंड 54% अराइव बाय टैक्सी। नो मेडिकल हेल्प ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग पैरामेडिक्स ड्यूरिंग द रूट। मिसकंसेप्शन है कि एम्बुलेंस बिजी हैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल छोड़ने में।
टारगेट कस्टमर है जो मेडिकल इमरजेंसी है पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स एंड एनजीओज। फीचर्स, इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले यूजर को, फिर साइन इन करना पड़ेगा और अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर सकता है एम्बुलेंस सेंड करने के लिए और वो एबिलिटी चेक कर सकता है अपनी एम्बुलेंस की कहाँ पहुंची कि नहीं। उसके बाद इसके अंदर जो ट्रेन पैरामेडिक्स होंगे जो कि रूट के थ्रू मींस रूट में वो हेल्प कर सकते हैं जो पेशेंट होगा उसकी, और हम हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। नॉट एम्बुलेंस ट्रैकर बट यूज फॉर पर्सनल व्हीकल आल्सो। When your child go outside and track where your child going and where your child late to come back, you can check where my child। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में क्या चाहिए, एक स्मार्ट एम्बुलेंस और एफर्टलेस मैनेजमेंट और सोशलाइज होनी चाहिए एप्लीकेशन, और पीपल को पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन बिलोंग करता है कि नहीं। उसके बाद यही क्यों, डील विद इमरजेंसी रियल क्विक, ये एनी एम्बुलेंस से जल्दी प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद जीपीएस ट्रैकिंग, आप पता लगा सकते हो कि हमारी एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है कि नहीं। अभी आधे से ज्यादा पेशेंट ट्रैवल क्यों हो जाते हैं? किसी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को ले जाए, बहुत या ज्यादा अपना जो अपना है मॉडल उसको हम क्यों किसी और के लिए हम क्यों नहीं। आप अपने डॉक्टर को अपने से जोड़िए और जो मेडिकल स्टोर है उनको अपने से जोड़िए, उनका डिस्काउंट भी लीजिए और वो दीजिए, बहुत बड़ा मॉडल मिल जाएगा। एक सिटी से दूसरे सिटी में सब कुछ हो जाएगा, है ना। starting from a very hyper local, they can actually सर से मिलिए एक बार। आइडिया ड्रॉप नहीं करने का है, जो भी फर्स्ट ईयर दी है आपने, आइडिया ड्रॉप नहीं करना है। द पर्पस यही है कि फीडबैक मिले और आप उस पर कुछ काम कर पाए। हम लोग तीन चीजें देखते हैं आइडिया में, जब फंड, एक तो न्यू आइडियाज हो, मार्केट में एग्जिस्टिंग अगर है तो उस पर आपको फंड नहीं मिलेगा। न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है। तो सोसाइटी बेनिफिट मैंने आपको बताया, लोगों से जुड़िए, उसको रिवर्स कर दीजिए। न्यू आइडियाज और न्यू टेक्नोलॉजी, तीन चीजों पे फंड मिलता है। तीन चीजों को आपका जैसे ही आपने स्टार्ट किया आप ये तीन चीजें चेक करते हैं और इन तीनों में आप रिवर्स करिए, चाहे दूसरी बात करिए। अगर एक एग्जिस्टिंग है तो फंड कोई नहीं देगा, ये ध्यान रखना। न्यू आइडियाज गवर्नमेंट से करेंगे और आप प्री बुकिंग भी कर सकते हो। थैंक यू। I would like to call Team Domain Hackers. The people who are present over here at the meeting. Today I have come to present the idea and my innovation, our team's innovation that we are going to present here today. Today we have thought about this presentation of innovation for far too long. And today it is my honor to present it in front of you. We are thinking of presenting a smart traffic management system for sustainable urban mobility. This will be a device. This will be a device that would have a rapid growth of that congestion, a lots of traffic going on, and there is a few things that I would like to present. Here we would like to present a smart traffic management system, which considers intelligent transportation, and it uses various techniques such as Internet of Things, IoT, artificial intelligence, AI, and ML, machine learning, that is combined in order to present real-time data in the cars, in order to make the traffic system more effective in lots of various ways. This device will collect data, real-time data from all of the sensors, cameras and various objects that are placed in order to improve traffic, and it will increase the communication between the vehicles in order to get various effective ways of fighting traffic congestion, increasing emission of carbon caused by traffic. According to statistics, there is a rise of around 20 to 30% carbon emissions just due to traffic, right? So what we are going to do is we are going to reduce traffic by a huge means. We are going to have a huge impact on the environment as well as the modern world, right? So our device, what it will do is it will collect data from multiple devices at the same time, and then it can use that data or the
but due to traffic it isn't able to reach. According to statistics, that is what happens almost all of the time. Be it Delhi, be it Mumbai, be it anywhere. It happens everywhere, right? So what we do is, when the device is installed, what it will do is, it will project the data on all devices at the same time. It will have a warning message that an ambulance is 1 kilometer away from you. And so you have to clear the path. So everyone can clear the path and the ambulance can move on. It has a lot of various uses, lots and lots of uses, that it will be a rather beneficial device. And I believe this traffic management system is a cutting edge solution to our mostly all the, it can be stolen, right? It is very easy to steal nowadays. So we have been rather hesitant, but we still chose to present this idea in front of you with certain hopes. I would like to show you the animation.
आइडिया मेरा है, इसने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वहाँ चला गया वीडियो प्ले करने, मैं यहाँ आ नहीं पाया, बीच में वीडियो पॉज हो गया। गवर्नमेंट से आपको रिक्वायरमेंट होगी ना कि सर इसमें क्या कहते हैं रिसर्च टीम लगेगी कि डिवाइस पे रिसर्च करना पड़ेगा। ये पॉइंट ये है कि इंडिया में टेस्ला की कोई मॉडल्स मैं वही नोट किया ये हूँ। ऑटो कम्युनिकेशन होगा फ्लूइडली, पूरा ट्रैफिक की जरूरत नहीं, जहाँ जैम है डिवाइस खुद ऑटोमेटिक बता देगा दूसरे डिवाइस को कि यहाँ जैम है, तुम्हारा डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ एक दूसरे से गाड़ियाँ ट्रैफिक में कम्युनिकेट कर रही ऑटोमेटिक। अभी ऐसा सिस्टम इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है कि नहीं कोई सी बात नहीं है। यूएस में लॉन्च करके फिर विड्रॉ कर दिया 3-4 लाख इस तरह का गाड़ी मार्केट में डिवाइस ऐसा एक जीपीएस सिस्टम है जो स्मार्ट वर्क करता है, जहाँ ऑटो पायलट नहीं होगा मगर उसकी जैसे सेफ्टीज होंगी, ऑटोमेटिक नहीं, हाँ ऑटो पायलट नहीं है सर, ये डिवाइस इंस्टॉल रहेंगे, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए सर। अगर कोई गाड़ी क्रैश हो गई तो पहले ही बता देगा दूसरे गाड़ियों को जो दूर 1 किलोमीटर की गाड़ी है कहाँ जा रही है, कि कहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम सबके यहाँ रहेगा, है ना? हाँ, एक और एक जनरेटर होगा, सबको वो कंट्रोल करेंगे, इंफॉर्मेशन रिकवर देगा। प्रॉपर इससे सर गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सर एम्बुलेंस से कोई इमरजेंसी अगर कहीं अटैक हो गए तो व्हीकल्स फंसे हैं तो ऑलरेडी वो साइड हो जाएंगे, आर्मी को डायरेक्ट वे मिलेगा जाने के लिए। यहाँ नेशन को भी हेल्प होगा, सोशल वर्क भी होगा और हमारे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि डिवाइसेस हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हम जो ये डिवाइसेस की आप बात कर रहे हैं उसको उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आईओटी और एमएल सर IoT and ML तीनों सर उस पे कुछ वर्क हुआ है या अभी आइडिया है? नहीं सर अभी ये आइडिया बस प्रपोजल है आइडिया। सर इतना कोई है नहीं अभी करने वाला। जो आप इसको स्प्रेड करेंगे वो कैसे करेंगे? सर इसको डेवलप करने सर इसके लिए एक टीम चाहिए, एक पूरी टीम चाहिए सर इसको डेवलप करने के लिए। क्योंकि स्प्रेड करना और जो सेंसर होगा हर गाड़ी में उसको रिसीव करके वो डिस्प्ले में शो कर सके। तो सर गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देगी ये सारी चीजें। बेसिकली आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही सेल करना पड़ेगा। नो मैम गवर्नमेंट मैंडेटरी जैसे स्पीडोमीटर होता है। बट बिफोर दैट जैसे भी टेस्ला है, ठीक है, अब वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसने वो भी रेडी हो और प्लस एंड बहुत चाहिए होगा। हां कोलैबोरेट विद इसका एक प्रोटोटाइप आप प्रोटोटाइप पे वर्क करिए। सर इसके लिए सर फंडिंग चाहिए। आपके कैलकुलेशन कितने फंड की रिक्वायरमेंट है? सर ये छोटा मोटा रिसर्च नहीं है सर, बड़े बड़े नहीं एक प्रोटोटाइप के लिए पहले प्रोटोटाइप पे वर्क करिए। नहीं एआई वगैरह समझते हो ठीक से, वो काम किया हो सर थोड़ा और बात बहुत करो। बहुत ज्यादा नहीं काम किया क्या हो क्या सर, इसीलिए तो कॉलेज में आए नहीं, सर, नहीं, कॉलेज नहीं, में स्कूल में नहीं, ये सब चीजें नहीं कर सकते प्रोटोटाइप बनाने कितना लगेगा? प्रोटोटाइप सर, लाइक इट डिपेंड अपॉन सर टीम, डिपेंड्स अपॉन द टीम सर। उसको अप्लाई करना होगा ना उसमें। हाँ सर, अच्छे लोगों को If we want to hire good people, we need good amount of आइडिया ऐसा हो तो ऐसा हो करियर से वो तो ये अच्छा हो जाएगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? सर डिवाइस गवर्नमेंट खुद बोलेगी स्पीडोमीटर होता है सर, गाड़ियों में इंस्टॉल होता है कि एक लिमिट के बाद स्पीड इतनी ऊपर जा नहीं सकती। मैं हमारे डिवाइस में तो कैमरे भी जगह जगह लगे हैं आपको वॉच करने के लिए, स्पीड भी वो चेक कर लेती है, स्पीड हाई स्पीड चल रहा है कैमरा, तो ये भी कर सकते हैं। सर बड़ी मल्टीपर्पज सेलेक्ट करके ये जैसे सर वर्क ऑन योर डिवाइस, बेसिक तो डिवाइस पे आप वर्क करोगे। Exactly, ma'am. For in order to work on the device, we need some funding, right? We need something in order to work on ये it. DSRC क्या है? सर ये डिवाइस का ही क्या फॉर्म क्या है? DSR से डिवाइस सर्विस Device Service Resource Center. It is basically the database for all the devices that are. Data center. Yeah, data center. That's it. सर हम डेटा तो कलेक्ट भी कर सकते हैं कौन कहाँ जा रहा है। इसके लिए एक टाइम लिमिट लेकर के इसको, और ये तो आइडिया हो गया काम करो, इसमें इस पे एग्जैक्टली IoT कैसे और ML कैसे आप लगाओगे वो आप कर लीजिए। तो पहले सर टीम चाहिए, टीम तो देखिए आपकी आपकी डिपार्टमेंट अगर आप सीरियस हो गए तो डिपार्टमेंट में सपोर्ट करना शुरू करेंगे। आपकी एनर्जी से जो मैच करे तो आप अपनी टीम में सर वैल्यूबल होना चाहिए ना जब रिसर्च वर्क के लिए वो। ओके बच्चे पहले आपकी जो डिवाइस है सबसे पहले तो वो चीज़ बन रही है, ठीक है, तो उसका प्रोटोटाइप तो आप ही देखोगे, इसमें पूछोगे कौन सा आपसे सपोर्ट कर सकता है, कौन फ्रेंड्स है, क्या है, जो बाद में जब तक मेरे पास कुछ है नहीं तब तक मैं आइडिया खाली सेट नहीं कर सकते ना। ये कॉन्सेप्ट ना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोफेसर आपने हाँ आपके डिपार्टमेंट से बच्चे बीटेक हाँ तो आपके यहाँ पे दीक्षा सर होने चाहिए थे। नहीं
एक आपका CS के प्रोफेसर और एक इलेक्ट्रॉनिक के प्रोफेसर के साथ बैठाए। मेरे को दोनों का नाम भेज दो कॉन्फ्रेंस साथ बैठ साथ एक मीटिंग करा के इसकी फिजिबिलिटी पॉसिबल है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आइडिया अगर सिक्योरिटी पर्पस किसी को चाहिए लगा तो इजीली किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कौन कहाँ जा रहा है, आपका सन कहाँ जा रहा है, डॉटर कहाँ जा रहा है, सब ट्रैक कर नंबर प्लेट हो गया गवर्नमेंट ने आइडिया ही तो दिया होगा, नंबर प्लेट चेंज हो गया, वैसे यही आइडिया जाएगा तो करेंगे मैंडेट हो जाएगा। अच्छा सेफ्टी पर्पस के गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है और इसको परचेज भी गवर्नमेंट करेगी। यस गवर्नमेंट यूजेस के लिए ज़्यादा ही है, गवर्नमेंट पेटेंट करवा रहा है तो आइडिया का पेटेंट होगा जल्दी करो। DSRC पे आप काम कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट के लिए। में ये सारा प्लेटफॉर्म है, आप समझिए कि इवनिंग में 6 बजे से 12 बजे रात तक लगभग 2 महीने तक टॉय की सारी चीज़ें हुई। रेगुलर हम लोग बैठे हुए हैं, बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, टॉय बना रहे हैं अब वुडन से। आप देखते हुए बचपन में हम लोग खरीदते थे तो टॉय बनते थे वुडन का ही, पहले होता था कि मुंह में भी डाल ले तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी पॉलीमर आ गया, पॉलीथीन आ गई, ये जब प्लास्टिक आ गई, प्लास्टिक से प्रॉब्लम भी है। तो अब टॉय गवर्नमेंट से जितना फंड आपको लेना हो टॉय बनाने के लिए, वो भी वुडन का वो फंड देने के लिए तैयार है। अभी गवर्नमेंट के आया था टॉयकॉथन या हैकॉथन में आइडियाज देते हैं जनरली। ये आइडिया है 10 लाख आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ट्रेन अगर जा रही है 10 किलोमीटर के ऊपर कहीं ट्रैक हमारा ब्रेक हो गया है तो आप एक ऐसी मशीन बनाएं जिससे ट्रैक को आप चेक कर सकें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रेलवे डिपार्टमेंट आपको देती है। तो हर डिपार्टमेंट का हैकॉथन आप चेक करते रहिए। फिर मैंने डिपार्टमेंट से बात किया, कॉलेज में अपने नहीं, IIT दिल्ली में इनोवेशन सेल है, प्रोफेसर मिश्रा हम लोगों ने इनवाइट किया था वर्मा जी, और हम लोगों ने जा करके वहाँ पर देखा, उन लोग बहुत वर्क कर रहे हैं, इनोवेशन सेल है। आप वहाँ पर जाके कभी भी लें, IIT दिल्ली में इनोवेशन सेल में आपको वेलकम करेंगे, आपसे बात भी करेंगे और 1-2 मेंटर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे सीड फंडिंग हम लोग कहते हैं कि सीड फंडिंग चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट है वो एज ए सीड होना चाहिए। मतलब सीड में क्या मतलब हुआ, सीड का मतलब उसके अंदर पोटेंशियल होगा पूरा प्लांट बनने का, सीड से ही प्लांट बनता है ना। तो सीड फंडिंग में उसको क्यों बोलते हैं? हमारा जो प्रोजेक्ट है जिससे आप लोगों ने प्रेजेंट किया है, ये सीड टाइप का हो कि जैसे ही वो ग्रो करे बहुत बड़ा प्लांट हो जाए। तो जो सीड फंडर होता है वो देखता है कि पोटेंशियल कितना है, उसको देखता है कि वो रेवेन्यू जनरेशन उसका मॉडल क्या है। क्योंकि जैसे वो फंड देगा 10 लाख 20 लाख जितना आप मांगेंगे वो फंड देगा, वो जैसे ही फंड मिलेगा वो प्लांट बनेगा कि नहीं, यानी कि वो सीड है कि नहीं हमारा प्रोजेक्ट। तो ना सीड फंडिंग आपको वही देगा जो आपके प्रोजेक्ट में पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए सीड फंडिंग उसका नाम दे दिया गया। एंजल फंडिंग, एंजल में क्या है कि आपका वर्क कंप्लीट हो चुका हो, 10-20 लाख रुपए 20 आप लगा चुके हो, रनिंग हो, और ईयरली आपने कितना उसमें अर्निंग किया वो लोग देखते हैं। अगर सब कुछ चल रहा है तो आपको आकर के कोई ऊपर से आकर के फंड दे देगा। जब आपको बहुत नीड हो, जब आपको नीड हो कि कोई एंजल आए, कोई ऐसा कोई आए मैजिक हो और मेरा ग्रो कर जाए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में,